ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਾਈ ਅਕੈਡਮੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲਿਮਿਟ ਤੁਸੀਂ 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। 1 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ, ਹੋਮ ਆ। ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਰੋਡ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਲਈ। ਸਿਮਿਲਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਕਿਉਂ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪਲੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ, ਦੇਖੋ ਏ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਰਸਤੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ 2 ਵੇਰੀਏਬਲਸ 'ਤੇ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸੀ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਨੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ y = mx ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ y = mx² ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਸਤਾ, ਜਿਵੇਂ y = mx ਦਿਸ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੁਕੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਲਰ ਰੈੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸੋਲਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਕਰੀਏ,
कि ब्लैक ज़्यादा विजुअलाइजेशन सही होंगी है। मैं की कराँगा इस पॉइंट पर की लगा दाँगा एक छोटा जिहा सर्कल लगा दाँगा, इहदा रेडियस मैं की लगा दाँगा अपसाइलन लगा दाँगा। आ जिहड़ा पॉइंट आ ये मेरे को कितना ए बी। हुण देखो कोई बंदा इधरों आया तां भी मैनूं इत्थे एंट्री का पता लग जाएगा, इधरों आया तां भी पता लग जाएगा, इधरों आया तो जिहड़ी मर्जी साइड तो देखा मैं एंट्री मैनूं पता लग जाएगी। तो मेरे को फंक्शन हमेशा किस तरह का दिता होएगा f(x,y) क्योंकि 2 वेरीएबल दे विच आ तो कोई ना कोई मेरे को फंक्शन दिता होएगा। तो आपां इनू सॉल्व किवें करना, तो तुसीं जस्ट कुछ नहीं करना, इस ए बी पॉइंट ते तुसीं लिमिट चैक करनी है। तो आपां इनू चैक करदा करना a प्लस बी कॉस थीटा बी, हाँ जी इत्थे आर फिल करना, सॉरी जी, ठीक है जी। इत्थे क्या a प्लस आर कॉस थीटा बी प्लस आर साइन थीटा। फंक्शन चेंज कर लिया, हुण आपां दोनों साइडां ते लिमिट लगा देंगे। जो देखो लिमिट लगाई की बन गया मेरे को एक्स वाई अप्रोच कर रहा, किहड़े पॉइंट नूं अप्रोच कर रहा ए बी नूं, एक्स वाई अप्रोच कर रहा मेरे को ए बी ने एफ एक्स वाई। हुण इधर की करना आपां जिहड़ी लिमिट आ वो सिंगल वेरीएबल दे विच लै जानी। सिंगल वेरीएबल मीनस आर अप्रोचेस टू 0 एफ ए प्लस बी सॉरी ए प्लस आर कॉस थीटा बी प्लस आर साइन थीटा। देखो हुण बस इन्हूं सॉल्व कर देना। अगर मेरे को जिहड़ा आ वाला न्यू फंक्शन बनिया इहदे ते मैं आर नूं 0 नूं अप्रोच करन तो बाद सारा जिहड़ा मेरा सल्यूशन आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। थीटा इत्थे कितनी वैल्यू होएगी तुसीं आप देखो, एक सर्कल बन रहा तो मेरे को थीटे की वैल्यू कितनी होएगी 0 तो लैके 2 पाई दे तक होएगी। तो मैं की कहूँगा मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर मेरे को किते जो मैं सॉल्व करने तो बाद मेरे को सम दे विच किते थीटा प्रेजेंट रह गया तो मैं कहूँगा मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट, अगर थीटा मिल गया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके जी, हुण आपां ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप डायरैक्ट सम ते चलते हैं। तो तुसीं देखोगे सम कितने ईजीली हो जाते हैं। लो जी फर्स्ट सम, हाँ जी करिए स्टार्ट जरा। ओके जी, हुण आपां सीधा ही सम के उपर चलते हैं। मैं ये डायरैक्ट वैल्यू पुट करांगा ताकि मेरे को टाइम वेस्ट ना हो। आर अप्रोचेस टू 0। और देखो इत्थे ए ते बी की वैल्यू कितनी आ, ए मेरे को हैगा 0 बी हैगा 0, क्योंकि किहड़े पॉइंट ते चैक करनी है मैं देखो 0 0 ते। तो मैं जस्ट एच की पुट करूँगा एफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। लो जी सॉल्व कर दिया जरा आप ये बन गया मेरे को लिमिट आर अप्रोचेस टू 0। हाँ जी न्यूमीनेटर दे विच पुट किया बन गया मेरे को आर कॉस क्यूब थीटा आर साइन क्यूब थीटा। डिनोमीनेटर दे विच बन गया मेरे को आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। हुण देखो उपरों नीचे की कॉमन निकल रहा, देखो जरा लिमिट आर अप्रोचेस टू 0, उपरों में आर स्केयर कॉमन आर क्यूब कॉमन कर लेना। लो जी अंदर रह गया मेरे को कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। पेपर में इस तो ही फास्ट करोगे क्योंकि मैं तो थोड़ा करवा रहा नाल। अंदर रह गया मेरे को कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। हाँ जी साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा की अपने वैल्यू बचपन तो याद है, तो किसी ने भुली नहीं होनी चाहिए। आर स्केयर आर क्यूब के नाल कट गया, ऊपर मेरे को आर रह गया। लो जी आंसर आ चुका है थोड़ा, फटाफट इन्हू सॉल्व कर दिए जरा। की बन गया मेरे को देखो आर कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, नीचे तो मेरे को 1 बच गया जी। हुण देखो आर किनू अप्रोच कर रहा 0 नूं, तो आप इनू 0 फिल कर देने, तो ओवरऑल आंसर मेरा कितना आ गया 0। देखो ओवरऑल आंसर मेरा कितना आ गया 0। तो यही तो मैं बोलिया सी, अगर मेरे को लिमिट आर नूं अप्रोच कराउण तो बाद मेरे को किते भी फंक्शन दे विच थीटा ना बचे तो मैं कहांगा मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। तो यदी की होगी मेरे को देखो लिमिट एग्जिस्ट। देखो कितना ईजी सी, ठीक है जी। हुण आपां नूं इहदे विच रट्टा नहीं मारना पैना, मैं इनू की पुट करा वाई इज इक्वल टू एम एक्स पुट करदा, जां कई बार वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्केयर पुट करदा, क्योंकि मैनू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। हुण ये तो अपना रट्टे वाला काम हो गया सी, इनू मैं पुट करना, हो सकता तुसीं उत्थे जाके भुल जाओ इनू मैं की पुट करा, ठीक है जी। नैक्सट सम देखते हैं आप जरा सिमिलर सम, फटाफट इहदा आपां सल्यूशन सॉल्व करते हैं। लो जी लिमिट आर अप्रोचेस टू 0, उपर आप फटाफट फिल किया। हाँ जी उपर आप फटाफट फिल किया तो की बन गया मेरे को देखो
आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा माइनस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। क्योंकि देखो इतने भी ए तो बी की मेरे को वैल्यू कितनी है 0 0 आ, तो फिर मैं जस्ट की पुट करना सी एफ नू आप लिखना की होंगे सी ए प्लस आर कॉस थीटा बी प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, हम ए तो बी की मेरे को वैल्यू 0 आ, तो इन्हें की बन जाना सी आर कॉस थीटा तो आर साइन थीटा। ठीक है जी, तो मैं डायरैक्ट वो फिट कर दिता क्योंकि हम मैं थोड़ा दस चुकिया वार वार आप एक गल करेंगे तो फिर बंदा बोर हो जाता तो टाइम भी ज़्यादा आप वेस्ट करेंगे। नीचे बन गया मेरे को कॉस स्केयर थीटा, हम मैं आर स्केयर भी दोनों के कॉमन कट लेता। लो जी साइन स्केयर थीटा, हाँ जी सॉल्व कर लो, देखो जरा की बन रहा है मेरे को। हाँ जी लिमिट आर अप्रोचेस टू 0, ऊपर भी आर स्केयर कॉमन निकल गया, अंदर बन गया मेरे को कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, नीचे मेरे को बन गया आर स्केयर इंटू 1, आर स्केयर ना आर स्केयर कट्या गया। हम मेरे को ऊपर की बन गया लिमिट आर अप्रोचेस टू 0, कि फार्मूला होंगे मेरे को कॉस टू थीटा का। हम देखो आर मैं लिमिट आर ने अप्रोच करवानी, आर मेरे को है ही नहीं, तो मेरा आंसर कितना आ गया कॉस टू थीटा। हम देखो थीटा मेरे को कितना बिलोंग करता सी 0 तो लैके 2 पाई, हम 0 तो लैके 2 पाई तक हर एक वैल्यू वास्ते यदा आंसर डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो थीटा प्रेजेंट रह गया तो मैं कहूँगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, नैक्सट देखिए जरा आप। ओके जी नैक्सट देखो जरा, टाइम आप ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, फटाफट कर देना। ओके जी इतने पहुँचो जरा, फिर आप लिमिट का चैक करनी है 0 0 तो चैक करनी है, टाइम ना वेस्ट करते आप डायरैक्ट सम के उपर चलते हैं। लो जी की बनना मेरे को लिमिट आर अप्रोचेस टू 0, वाई नू पुट करना सी मैं आर साइन थीटा। लो जी आर साइन थीटा, अगला साइन उस तरह 1 अपॉन एक्स नू की पुट करना आर कॉस थीटा। लो जी हुण थोड़ा थोड़ा जिहा एक चीज़ होर नाल दसांगा जिहदे नाल कि सम बिल्कुल छोटा जिहा बन जाएगा, वाई डैश वाई साइन 1 ओवर एक्स, ओनली साइन 1 ओवर एक्स की गल कर रहा मैं। साइन 1 ओवर एक्स का ग्राफ जो आप 0 के लागे अप्रोच करते हैं तो यदा ग्राफ इस तरह होना शुरू हो जाता, तो बिल्कुल इदा इदा घूमना शुरू हो जाता, ऑसीलेट करना शुरू कर देंगे कादे च -1 तो लैके 1 तक। कदों जो जी आ वाली एक्स आ वो 0 अप्रोच करती है। तो कहने का मतलब की आ जो ये वैल्यू 0 अप्रोच कर गई तो यदी कोई भी वैल्यू हो सकती है -1 तो लैके 1 तक। ठीक है जी, साइन थीटा की आपको पता है वैल्यू कितनी होंगी है -1 तो लैके 1 दे विच कोई भी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई कर देनी। आर मैं किनू अप्रोच कराना 0, लो जी मैं 0 अप्रोच करा दिता। तो हम ओवरऑल आंसर कितना बन गया, इधरों कोई भी वैल्यू होएगी तो जो उन्हें 0 नू मल्टीप्लाई किया 0 इंटू एनीथिंग कोई भी नंबर होएगा ना इन्होंने अपने को, तो मेरे को बन गया 0। लो जी फटक देने मेरा आंसर आ गया, हाँ 0 आ गया। कितने मेरे को थीटा वगैरह प्रेजेंट हैगा नहीं हैगा तो मैं की डायरैक्ट कहांगा लिमिट एग्जिस्ट किहड़े पॉइंट ते 0 0। ठीक है जी चलिए अगे, लो जी फटाफट। आई होप हुण तां आपां नूं करन दी लोड़ भी नहीं, तुसीं डायरैक्ट ही दस देना, मैं जस्ट की कर लगा फिर भी तुहानूं मैं लिख के दस लगा। लो जी वाई नूं की पुट करांगे, फिर 0 0 तो चैक करना, ए बी दी तो वैल्यू की लोड़ ही नहीं क्योंकि दोनों 0 0 है जी। लो ये बन गया मेरे को आर साइन थीटा, पहले वाला तो आप वैसे ही कर चुके हैं, पहला आर कॉस थीटा प्लस नाल ही की है मेरे को आर कॉस थीटा साइन 1 ओवर आर साइन थीटा। ठीक है सिमिलर बिल्कुल जो आप लास्ट सम किया वो आर 0 अप्रोच कर रहा, साइन थीटा की वैल्यू -1 तो लैके 1 तक कोई भी हो सकती है। सिमिलर यदी वैल्यू भी कोई की हो सकती है -1 तो लैके 1 तक कोई भी हो सकती है, प्लस आर दी 0, फिर कॉस थीटा की वैल्यू -1 तो लैके 1 तक कोई भी हो सकती है। सिमिलर यदी वैल्यू -1 तो लैके 1 तक कोई भी हो सकती है। जो इन सारे ने सॉल्व किया ओवरऑल आंसर मेरा 0 आ गया। अगर कितने भी थीटा प्रेजेंट नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट। हाँ जी देखो कितना मज़ा आ रहा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जी लिमिट अपन 2 वेरिएबल की इन्नी ज़्यादा औखी लगती सी, फटाफट मेरे आंसर आ गया। ओके जी अगे चलते हैं जी। हाँ जी करोगे ट्राई जरा, थोड़े वास्ते एक लाइन का क्वेश्चन लिमिट
डायरेक्ट पुट करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना आप। ये बन गया मेरे को आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, ये बन गया मेरे को आर साइन थीटा अपॉन आर स्केयर कॉमन कर लेने डायरेक्ट ही, थले बन जाना मेरे को कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, थोड़ा फेवरेट। हाँ जी, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, बच्चों ਨੂੰ पढ़ाते ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वैसे रट्टा ਵੱਜ चुकिया है, सुपने ਦੇ ਵਿੱਚ भी कई बार ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है ना, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, हाँ जी 1 ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ भी मैं आर स्केयर कॉमन कर लिया, कॉस स्केयर थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे तो आर क्यूब हो गया जी, एक अपने को आर ये आ, एक मेरे को आर स्केयर क्यूब हो गया, नीचे आर स्केयर कैंसल कर दिता। हाँ जी, ऊपर बचा मेरे को आर कॉस स्केयर थीटा साइन थीटा। हाँ जी, जो आर ਨੂੰ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ कराया ओवरऑल आंसर 0, तो मैं की कहांगा लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए अगे लो जी नैक्सट देखो जरा। हुण अगर मैं लिमिट के सम करवा दिते तो कॉन्टीन्यूटी फ्री दी होएगी किवें। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट सम। हाँ जी, जो तुहानूं ये समझ आ गया तो फिर पिछे कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है जी, लो देखो जरा। हाँ जी, तो फटाफट करना स्टार्ट करते हैं जी अपन। लो जी, की बन गया मेरे को, देखो लिमिट आर अप्रोचेस टू 0, डायरेक्ट ही आप पुट कर रहे हैं। ऊपर बन गया मेरे को आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, वाई की वैल्यू मेरे को आर साइन थीटा अपॉन आर पावर 4 कॉस पावर 4 थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। हम देखो ऊपर भी सैटिंग कर लें, नीचे भी सैटिंग कर लें, मीनस न्यूमीनेटर एंड डिनोमीनेटर दोनों के आप कर लें, ये सैटिंग कर लें। लो जी, सॉल्व करते हैं अपन। हुण जो उपर बन जाने ने आर क्यूब कॉस स्केयर थीटा साइन थीटा अपॉन दे विच मैं की कर लगा आर स्केयर बाहर कढ़ लिया, अंदर है गया डिनोमीनेटर दे विच आर स्केयर कॉस पावर 4 थीटा प्लस आर स्केयर बाहर निकल गया तो इतने 1 ही रह जाना, ना रह गया मेरे को साइन स्केयर थीटा। लो जी, हुण स्केयर दे नाल क्यूब कट्टिया गया, उपर पावर रहेगी मेरे को ओनली 1। ठीक है जी, ओनली 1 रहेगी, तो होर कुछ कॉमन निकल सकता है ये, देखिए जरा। होर कुछ नहीं कॉमन निकल रहा, ना ही कुछ हो रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप देखते हैं। आप बन गया कॉस स्केयर थीटा नाल साइन थीटा, नाल उपर एक आर रह गया, अंदर रह गया मेरे को आर स्केयर कॉस पावर 4 थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। ठीक है जी, देखो हुण अगर मैं इस साइन थीटा इस साइन स्केयर थीटा ना, मैं साइन थीटा की गल कर रहा, अगर मैं साइन थीटा आर पुट कर दा तो की फर्क पेगा, क्यों साइन थीटा की मेरे को -1 तो लैके 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देखो अगर आर 0 ਨੂੰ अप्रोच करेगा तो यानी कि इतने 0 ये वैल्यू आ जाएगी, तो मीनस मैं इतने इनू पुट कर सकता साइन थीटा की आर, क्योंकि देखो अपने को की अगर डिनोमीनेटर के थीटा बचता तो आप की करना, वो थीटे को एलिमीनेट करना होंगे। अगर डिनोमीनेटर के बचता, हम डिनोमीनेटर के बचता पाया, होर कुछ सॉल्व करना मेरे को मैथड नहीं बचता पाया, तो मैं की करना, तुसी हर बार इदा कोशिश करनी जो डिनोमीनेटर के बच जाए तो तुसी साइन थीटा होएगा या कॉस थीटा होएगा, वो कोई ना कोई वैल्यू पुट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आर 0 ਨੂੰ अप्रोच करता तो 0 की ये साइन की एक वैल्यू 0 भी होंगी है। मैं पुट कर देना, मेरे को की बचता, देखो लिमिट आर अप्रोचेस टू 0 आर कॉस स्केयर थीटा, हाँ जी अंदर बन गया मेरे को साइन थीटा, इन पुट करना सी, आप पुट कर दें इंटू आर। ठीक है जी, पुट कर दें आप जरा। डिनोमीनेटर के देखो मेरे को की बचा, हम डिनोमीनेटर के है मेरे को आर स्केयर
cos पावर 4 थीटा प्लस ਇਹਦੀ जगह बन जाना मेरे को आर स्केयर। ਹੁਣ देखो सारे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं ਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ सॉल्व करांगा, उपरों भी मेरे को आर स्केयर है, नीचों भी आर स्केयर कॉमन कट देने, तो मेरे को देखो की बचेगा लिमिट आर अप्रोचेस टू 0, उपर बच गया मेरे को कॉस स्केयर थीटा न्यूमीनेटर के डिनोमीनेटर के कितना बच गया मेरे को कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1। देखो हम मेरे को आर पुट करना नहीं गा, तो सारे मेरे को की बच गया ये कॉस स्केयर थीटा कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1। देखो थीटा एलिमिनेट नहीं कर पाए आप, अगर एलिमिनेट नहीं कर पाए तो आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, सिंपल जा फंडा। नैक्सट चलते हैं जी आप नैक्सट सम ते। हाँ जी, हुण आ गया अपने को कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी का की फंडा है, अगर आप लिमिट फाइंड कर ली तो उस तो बाद एक स्टैप होर चैक करना। हाँ जी, आप लिमिट चैक कर ली, जस्ट किहड़े पॉइंट चैक करी सी आप, कोई भी ए भी पॉइंट से जिते आप चैक कर रहे सी। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो जाए तो किहदे बराबर आ जाए, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट की इक्वल आ जाए, तो मैं कहवांगा यदि फंक्शन की कॉन्टीन्यूस आ, नहीं तो नहीं कॉन्टीन्यूस। लो जी चैक करते हैं। हम पहला सम आप करके आ चुके हैं पिछे, आप फिर पिछे जाके देख लेने, पिछे नहीं देखना तो आप इत्थे कर लेने। हाँ जी, याद होना यदि की हुई सी लिमिट एग्जिस्ट हो गई सी। ठीक है, यदि की हो गई सी लिमिट एग्जिस्ट कर गई सी, लास्ट आप करिया सी। लिमिट कितनी आई सी, पिछों चैक कर लियो 0 आई सी। हम तो फंक्शन की वैल्यू ए बी पॉइंट के उपर, ठीक है, जानी कि 0 0 तो गल करते पे। हम आप 0 0 तो यदि वैल्यू कितनी आ, देखो 0 0 दोनों बराबर आ गए, लिमिट एग्जिस्ट भी कर गई तो फंक्शन की वैल्यू भी बराबर हो गई, तो मेरे को हो गया फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया। देखो जिन्हें लिमिट पिछे चंगी तरह कर लिया, कॉन्टीन्यूटी कुछ भी नहीं रह गई। अगला सम करते हैं, क्योंकि आप लिमिट चैक कर चुके हैं, सम सारे ही वही आ, जस्ट चैक करना। हाँ जी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी सी यदि, तो 1 मिनट का अपना काम रह गया सीगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि पहला कर चुके हैं। फंक्शन अपने को इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा बच नहीं बनता, फंक्शन के थीटा बच जाता। डज नॉट एग्जिस्ट, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूस। ठीक है जी, देखो 1 सेकंड का काम। नैक्सट चलिए। हाँ जी, थोड़ी देर पहला लास्ट सम यह किया सी, लिमिट एग्जिस्ट हुई यदि, ठीक है, लिमिट की होया सी डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर मैं की कहूँगा, हाँ जी, नॉट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, नॉट कॉन्टीन्यूस। चलिए अगे, ठीक है, नॉट कॉन्टीन्यूस। अगला देखते हैं। लो जी, याद आ गया, थोड़ी देर पहले किया सीगा, यदि की हो गई सी लिमिट एग्जिस्ट कर गई सी, तो कितनी लिमिट आई सी यदि 0, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ 0 0 पॉइंट ते 0, तो दोनों मेरे को कितनी आ, यानी कि मेरे को लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ एक्स वाई तो एफ ऑफ 0 0 दोनों बराबर आ गए, ये भी 0 सी, ये भी 0 सी, तो फिर मेरे को फंक्शन किया कॉन्टीन्यूस। देखो 1 सेकंड का काम। नैक्सट देखते हैं। हाँ जी, मारिए निगा। हम ये थोड़ा जहा डिफरेंट है, क्योंकि ये आप पिछे नहीं किया, तो फिर आप इन्हें ट्राई मारते हैं। देखो की बनेगा मेरे को, लिमिट आर अप्रोचेस टू 0 आप डायरैक्ट ही कर रहे हैं, पिछला आप सारा छड्ड के उपर बन जाना मेरे को 2 आर कॉस थीटा आर साइन थीटा अपॉन आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। लिमिट आर अप्रोचेस टू 0। हाँ जी, ऊपर की बन गया मेरे को 2 आर स्केयर कॉस थीटा है ना साइन थीटा। डिनोमीनेटर के विचों मेरे को की बच जाना, आर स्केयर रूट के बाहर रह गया, तो आर आ गया, अंदर रह गया मेरे को कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर, वो वैल्यू 1 होंगी है, 1 आ गया। देखो जी कट कर दिता, तो हम उपर मेरे को की बच गया न्यूमीनेटर के आर कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई विद साइन थीटा। आर नू 0 अप्रोच कराया, तो मेरा आंसर कितना आ गया 0। मीनस मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, क्योंकि फंक्शन के कितने थीटा नहीं आया। हम लिमिट की वैल्यू मेरे को कितनी आ गई एट पॉइंट ए बी,
यानी कि 0.00 तो फंक्शन की वैल्यू 0 तो कितनी है ऊपर देखिए जरा वो भी कितनी है 0 तो मेरे को कॉन्टीन्यूस हो गया ठीक है जी। तो देखो कितने मज़ेदार सम सीगे सिर्फ एक आप की करना सीगा चैक करना सीगा फंक्शन के थीटा प्रेजेंट रहिंदा है कि नहीं रहिंदा अगर नहीं रहिंदा तो फिर मेरे को लिखी है आप की कह दें फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर प्रेजेंट रह जाता है तो आप कहेंगे फंक्शन की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ठीक है जी। ओके चलो हाँ जी जो वीडियो चंगी लगी तो वीडियो लाइक कर दियो शेयर कर दियो सबसक्राइब कर दियो ताकि नवी न्यू वीडियो लेके जल्दी हाजिर होवांगे न्यू वीडियो वेरी सून थैंक यू वेरी मच स्टे ट्यून